गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये है आपकी क्लास 6 की इंग्लिश की बुक, हिंदी मीडियम की। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना जो 8 चैप्टर स्टार्ट हुआ था, इसका सेकंड पार्ट। ओके। टाइगर, ओ नेवर माइंड दैट व्हेन वन इज in danger one can promise anything to get out of it. You are old enough to know that it is my nature to kill cattle and eat them, so why shouldn't I eat you? Brahmin, no, you can't mean this, because I have just saved your life. I can't believe it. Tiger, why not? This is how everyone in the world behaves. Brahmin, I can't believe this either. Tiger, well, you may ask the first 3 things you meet, and they shall give their decision. Brahmin, very well, I will do as you say. Here is a peepal tree. I will ask him to the peepal tree, O people, you have heard what the tiger says. Don't you think he is treating me cruelly? People, I don't see what you have to complain of. I am treated just as badly every day. I give shade to tired travelers, and in return they tear down my branches to light their fire. It is the way of the world, and one must put up with it. Brahmin, well, this is no comfort, but here comes a buffalo. I will ask her. I am sure she will give me a better answer. To the buffalo, O buffalo, I have just said. Brahmin, well, this is no comfort, but here comes a buffalo. I will ask her. I am sure she will give me a better answer. To the buffalo, O buffalo, I have just set this cruel tiger free from a trap, and now he wants to kill and eat me. Don't you think he is an ungrateful beast? Buffalo, well, see how people treat me so long as I give them milk. They feed me well, but as soon as I am dry, they set me to hard work and don't feed me well. It is the way of the world, and we must put up with it. Brahmin, to himself, the tiger seems to be quite right, so I had better go back to him and let him eat me up, because it is the way of the world. But here comes a jackal. I will ask his advice too. To the jackal, O jackal, please listen to me. Jackal, what is the matter? O holy one. Brahmin, I have just set tiger free from a trap, and now the cruel, ungrateful beast wants to eat me up. Jackal, I am afraid I don't understand. All you say seem to go in at one ear and out of the other. Brahmin, I will tell it all over again if you like. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले क्या करेंगे, रीड करेंगे कि आप जो प्रोनाउंसिएशन करें, जो आपके माउथ से वर्ड्स आए वो एकदम क्लियर आए, प्रॉपर आए कि आप क्या बोल रहे हो। पहले आप इसे अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आपको लगेगा इसे वीडियो रोक कर आप इसे पहले रीड कर लीजिएगा अच्छे से कि आपकी रीडिंग प्रॉपर हो जाए। उसके बाद इसे आप हिंदी के साथ एक एक वर्ड करके आप इसे रीड करिएगा। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टाइगर, टाइगर मीन्स होता है चीता। ओह, अरे, नेवर माइंड दैट, इस पर ध्यान मत देना। मतलब चीता कह रहा है ओ अरे, नेवर माइंड दैट, इस पर ध्यान मत दो। व्हेन वन इज इन डेंजर, व्हेन मतलब जब, वन मतलब एक व्यक्ति, इज इन डेंजर खतरे में होता है। वन कैन प्रॉमिस, वन मतलब एक, कैन प्रॉमिस मतलब एक, मतलब प्रॉमिस मतलब होता है वादा करना, ठीक है, या वचन लेना। तो वो एक वादा कर सकता है एनीथिंग टू गेट आउट ऑफ इट। गेट आउट मतलब होना बाहर आना, ऑफ इट मतलब इससे, मतलब अगर आपके पास कोई खतरा, आप खतरे में हो तो आप खतरे से बाहर आने के लिए कोई एक वादा कर सकते हो। तो वही कह रहा है दैट टाइगर, ओ नेवर माइंड दैट, इस पर ध्यान मत दो। व्हेन वन इज इन डेंजर, जब एक खतरे में होता है। वन कैन प्रॉमिस एनीथिंग टू गेट आउट ऑफ इट, वह उससे बाहर निकलने के लिए कोई एक वादा कर लेता है।
यू आर ओल्ड इनफ टू नो दैट, यू आर ओल्ड इनफ, तुम पर्याप्त मतलब इतने बूढ़े हो गए हो, टू नो दैट, इसे जानने के लिए, मतलब तुम इतने बूढ़े हो कि तुम इसे जान सकते हो। इट इज़ माई नेचर टू किल कैटल, इट इज़ माई नेचर, ये मेरा प्रकृति का नियम है, प्रकृति द्वारा मुझे ऐसे ही नियम दिया गया है। टू किल कैटल, किल करना मतलब मारना, कैटल मतलब पशुओं को, एंड मीन और आदमियों को, एंड ईट देम और उसे खा जाना, मतलब इट इज़ माई नेचर टू किल कैटल एंड मेन, ये मेरा प्रकृति का नियम है पशुओं को मारना, एंड मीन और आदमियों को, एंड ईट देम और उन्हें खा जाना। सो इसलिए वाई शुड नॉट ईट यू, वाई, सो इसलिए वाई मिस क्यों, शुड नॉट ना, आई ईट मैं खाऊं, यू मिस तुम्हें, इसलिए मैं तुम्हें क्यों ना खाऊं। अब चीता कह रहा है कि ये तो मेरा प्रकृति का नियम है, तो मैं नियम का क्या करूँगा, नियम को फॉलो करूँगा, तो मैं इसे खाऊंगा। जैसे कि आपको ज़रूरत पड़ती है सब्जियों की, तो आप क्या करते हैं, जाके आलू ज़मीन से खोदते हैं, निकाल लेते हैं, या सब्जी बाज़ार से लेते हैं, तो वो लोग कहाँ से लाते हैं, वो लोग उसे उगाते हैं, उसके बाद उसको काटते हैं, लेके आते हैं। तो ये तो प्रकृति का नियम है कि चीज़ों को खा के ही एक लोग दूसरे लोग को खाएंगे, दूसरा तीसरे को खाएगा, इस तरीके से ये पूरा संसार चलता रहेगा। अब आता है ब्राह्मण पे। ब्राह्मण, नो नहीं, यू कांट मीन दिस, तुम ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि आई हैव जस्ट सेव्ड योर लाइफ, आई हैव जस्ट मैंने तुरंत ही, सेव्ड मतलब बचाया है, योर लाइफ मतलब तुम्हारे जीवन को। नो नहीं, यू कांट मीन दिस, तुम ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि आई हैव जस्ट सेव्ड योर लाइफ, क्योंकि मैंने तुम्हारा जीवन बचाया है। आई कांट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं करूँगा, या मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। टाइगर, चीता, वाई नॉट, क्यों नहीं, दिस इज हाउ एवरीवन इन द वर्ल्ड बिहेव्स, क्यों नहीं, दिस इज हाउ, इसी तरीके का, इसी प्रकार का, एवरीवन प्रत्येक लोग, इन द वर्ल्ड संसार में, बिहेव मतलब व्यवहार करते हैं, मतलब दिस इज हाउ, इसी प्रकार से, एवरीवन प्रत्येक लोग, इन द वर्ल्ड संसार में, बिहेव मतलब व्यवहार करते हैं, प्रत्येक लोग संसार में इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण, आई कांट बिलीव दिस ईदर, आई मीन्स मैं, कांट बिलीव मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, दिस ईदर इन सब पर, मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। टाइगर, चीता, वेल ठीक है, यू में आज द फर्स्ट थ्री थिंग्स, यू में आज तुम पूछ सकते हो, द फर्स्ट पहले, थ्री थिंग, थ्री मतलब तीन, थिंग्स मतलब चीज़ों से, यू मीट जिससे तुम मिले थे। वेल ठीक है, यू में आज द फर्स्ट थ्री थिंग्स यू मीट, तुम पहले तीन उन चीज़ों से पूछ सकते हो जिनसे तुम मिले थे, उनकी भी मतलब तुम सलाह ले सकते हो। एंड दे शैल गिव देयर डिसीजन, एंड मिस और, दे मिस वे, शैल गिव मतलब देंगे, देयर डिसीजन मतलब अपना डिसीजन, डिसीजन मतलब होता है निर्णय या सलाह देना, निर्णय देना। एंड दे शैल गिव देयर डिसीजन, और वे अपना निर्णय हमें देंगे। ब्राह्मण, वेरी वेल, बहुत ठीक है, आई विल डू मैं करूँगा, एज यू से जैसा तुम कहोगे, मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम कहोगे। हेयर इज ए पीपल ट्री, हेयर मिस यहाँ, इज मिस है ए पीपल ट्री, एक पीपल का पेड़, यहाँ एक पीपल का पेड़ है। आई विल आस्क हिम मैं इससे पूछ लूँ, आई विल आस्क हिम मैं इससे पहले पूछूं, मैं इससे पूछूंगी, टू द पीपल ट्री, पीपल ट्री पेड़, पीपल के पेड़ से, ओ पीपल अरे पीपल, यू हैव हियर्ड तुमने सुना है, व्हाट द टाइगर सेज कि चीता क्या कह रहा है, क्या तुमने सुना है कि चीता क्या कह रहा है। डोंट यू थिंक ही इज ट्रीटिंग मी क्रूअली, डोंट यू थिंक क्या तुम नहीं सोचते, थिंक मतलब होता है सोचना, यू मतलब तुम, ही मिस वह, इज मिस है, ट्रीटिंग मतलब व्यवहार कर रहा है, मी मतलब मेरे साथ, क्रूअली मतलब निर्दयता या बुरा व्यवहार करना या निर्दय पूर्ण व्यवहार करना। डोंट यू थिंक क्या तुम नहीं सोचते, ही इज ट्रीटिंग मी क्रूअली कि वह मेरे साथ निर्दयता का व्यवहार कर रहा है या मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। पीपल, आई डोंट सी मैंने नहीं देखा, वाट यू हैव टू कंप्लेन ऑफ कि तुम किस चीज़ की शिकायत कर रही हो, मतलब किस बात की शिकायत कर रही हो, मैंने नहीं देखा। आई एम ट्रीटेड जस्ट एज बैडली एवरी डे, आई एम ट्रीटेड मेरे साथ व्यवहार होता है, एज जस्ट इसी प्रकार का,
एज बैडली बुरा व्यवहार एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन, मेरे साथ भी प्रत्येक दिन ऐसे ही बुरा व्यवहार होता है। आई गिव शेड टू टायर्ड ट्रेवलर्स, आई मिस मैं गिव मतलब देता हूँ, शेड मतलब छाया, टू टायर्ड मतलब थके हुए, ट्रेवलर्स मतलब यात्रियों को, मैं थके हुए यात्रियों को छाया देता हूँ। एंड और इन रिटर्न और बदले में, रिटर्न मतलब होता है बदला, इन रिटर्न और बदले में दे टीयर डाउन, दे मिस वे टीयर मतलब तोड़ते हैं, डाउन माई ब्रांचेस मेरी शाखाओं को, टू लाइट देयर फायर अपनी आग जलाने के लिए, मतलब दे टीयर डाउन माई ब्रांचेस वे मेरी शाखाओं को तोड़ लेते हैं, टू लाइट देयर फायर अपनी आग जलाने के लिए, मतलब मैं उनको छाया देता हूँ, उन्हें आराम देता हूँ, लेकिन वो बदले में मेरे साथ क्या करते हैं, मेरी शाखाओं को तोड़कर अपनी आग जलाते हैं। इट इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड, इट मीन्स ये, इज मीन्स है, वे मतलब नियम, ऑफ द वर्ल्ड मतलब संसार का, ये संसार का नियम है। एंड वन मस्ट पुट ऑफ विथ इट, एंड वन मस्ट और प्रत्येक को पुट ऑफ विथ इट इसके साथ ही चलना चाहिए, सबको इसका ही पालन करना चाहिए। ब्राह्मण वेल ठीक है, दिस इज नो कम्फर्ट, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बट हेयर कम ए बुफैलो, बट लेकिन ये हेयर मिस यहाँ कम्स आ रही है, ए बुफैलो मतलब एक भैंस, लेकिन यहाँ एक भैंस आ रही है। आई विल आस्क हर, मैं उससे भी पूछना चाहूँगी। आई एम श्योर मैं निश्चित हूँ, शी विल गिव मी ए बेटर आंसर कि वह मुझे एक अच्छा उत्तर देगी, बेटर मतलब अच्छा, आंसर मिस उत्तर, मी मतलब मुझे, गिव मतलब देगी, शी विल मतलब वह, शी विल गिव मी ए बेटर आंसर, वह मुझे, मैं निश्चित हूँ कि वह मुझे एक अच्छा उत्तर देगी। टू द बुफैलो भैंस से, ओ बुफैलो अरे भैंस, आई हैव जस्ट सेट दिस क्रूअल टाइगर फ्री फ्रॉम ए ट्रैप, आई हैव जस्ट मैंने अभी सेट दिस क्रूअल इस निर्दयी को, सेट निकाला है, फ्री मतलब आज़ाद किया है, फ्रॉम द ट्रैप मतलब जाल से, आई हैव जस्ट सेट दिस क्रूअल टाइगर फ्री फ्रॉम ए ट्रैप, मैंने अभी इस निर्दयी चीते को जाल से बाहर निकाला है। एंड नाउ ही वांट्स टू किल एंड ईट मी, एंड मिस और नाउ मिस अब, ही वांट्स वह चाहता है, टू किल मुझे मारना, एंड ईट मी और मुझे खाना, एंड नाउ ही वांट्स टू किल एंड ईट मी और वह अब मुझे मारकर खाना चाहता है। डोंट यू थिंक ही इज एन अनग्रेटफुल बीट्स, डोंट यू थिंक क्या तुम नहीं सोचती, ही इज वह है, एन अनग्रेटफुल एक स्वार्थी, बीस्ट मतलब पशु, क्या तुम नहीं सोचती हो कि वह एक स्वार्थी पशु है। बुफैलो भैंस वेल ठीक है, सी हाउ पीपुल ट्रीट मी, सी देखो, हाउ मिस कैसे, पीपुल मतलब लोग, ट्रीट मतलब व्यवहार करते हैं, मी मतलब मेरे साथ, वेल ठीक है, सी हाउ पीपुल ट्रीट मी देखो लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सो लॉन्ग एज आई गिव देम मिल्क, सो लॉन्ग लंबे समय तक, एज जब, आई गिव देम मिल्क जब मैं उन्हें दूध देती हूँ, दे फीड मी वेल, दे मिस वे फीड मतलब खिलाते हैं, मी मतलब मुझे, वेल मतलब अच्छी तरीके से, जब मैं लंबे समय तक उन्हें दूध देती हूँ, दे फीड मी वेल वह मुझे अच्छे तरीके से खिलाते हैं। बट लेकिन एज सून एज जल्द ही, आई एम ड्राइंग जब मैं सूखने लगती हूँ, दे सेट मी टू हार्ड वर्क, दे मिस वे सेट मी मुझसे कराते हैं, टू हार्ड वर्क मतलब कठिन परिश्रम, वह मुझसे कठिन परिश्रम कराते हैं। एंड डोंट फीड मी वेल और मुझे ठीक प्रकार से खाने को नहीं देते। इट इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड, यही संसार का नियम है। एंड वी मस्ट पुट अप विथ इट और हमें इसे मानना चाहिए। ब्राह्मण टू हिमसेल्फ ब्राह्मण खुद से कह रहा है, द टाइगर सीम्स टू बी क्वाइट राइट, टाइगर मतलब चीता, सीम प्रतीत होता है, टू बी क्वाइट राइट बिल्कुल ठीक, चीता बिल्कुल ठीक प्रतीत हो रहा है। सो इसलिए आई हैड बेटर टू गो बैक टू हिम, सो इसलिए आई हैड बेटर ये ठीक होगा, गो बैक टू हिम कि मैं उसके पास वापस जाऊं, एंड लेट हिम टू ईट मी अप और मुझे अपने आप को खाने दूं, बिकॉज क्योंकि इट इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये संसार का नियम है। बट हेयर कम से जयकार, लेकिन यहाँ एक गीदड़ आ रहा है,
आई विल आस्क हिज एडवाइस टू, मैं उसकी भी सलाह लेना चाहूँगी। एडवाइस मीन्स होता है सलाह, मैं उसकी भी सलाह लेना चाहूँगी। टू द जयकाल, गीदड़ से, ओ जयकाल, ए गीदड़, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज मतलब कृपया, लिसन मतलब सुनो, टू मी मतलब मुझे, कृपया मुझे सुनो। जयकाल, गीदड़, व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है या क्या बात है। ओ हॉली वन, ए पवित्र आदमी। ब्राह्मीण, ब्राह्मण, आई हैव जस्ट सेट टाइगर फ्री फ्रॉम ए ट्रैप, आई हैव जस्ट सेट, मैंने अभी अभी टाइगर, चीते को, फ्री फ्रॉम ए ट्रैप, एक जाल से बाहर किया है या एक जाल से आज़ाद किया है। एंड नाउ, और अब, द क्रूअल, निर्दयी, अनग्रेटफुल, स्वार्थी, बीस्ट, पशु, वांट्स, चाहता है, टू ईट मी अप, मुझे खाना। आई हैव जस्ट सेट टाइगर फ्री फ्रॉम ए ट्रैप, मैंने अभी अभी इस चीते को जाल से बाहर किया है और अब ये निर्दयी और स्वार्थी पशु मुझे खाना चाहता है। जयकाल, गीदड़, आई एम अफ्रेड, मैं डर गया हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करना मतलब समझना, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आल यू से सीम टू गो इन एट वन ईयर, आल सभी, यू से जो तुम कह रही हो, तुम सब जो कह रही हो, सीम प्रतीत हो रहा है, टू गो इन एट वन ईयर कि मेरे एक कान में जा रहा है, एंड आउट ऑफ द अदर, और दूसरे कान से बाहर आ रहा है। मतलब जो बातें मुझसे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि जो तुम सारी बातें कह रही हो वो एक कान से मेरे जा रही हैं और दूसरे से बाहर आ रही हैं। ब्राह्मीण, ब्राह्मण, आई विल टेल इट ऑल ओवर अगेन, आई विल टेल, मैं तुम्हें बताऊंगी, इट ऑल ओवर अगेन, ये सब दोबारा, इफ़ यू लाइक, यदि तुम इसे सुनना चाहो, मतलब यदि तुम इसे सुनना पसंद करो तो मैं इस सारी चीज़ों को दोबारा बताऊंगी। तो ये आपकी वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट थर्ड चैप्टर, इसका जो 9 का है, सॉरी 8 चैप्टर का आपका थर्ड पार्ट बनेगा और उसके बाद वो लास्ट पार्ट होगा, आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिलहाल के लिए जो आपको पढ़ाया गया इसे अच्छे से लर्न करें, रीड करें, जो मीनिंग समझ में ना आई उसे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या मीनिंग है जो आपको समझ नहीं आई, और चैप्टर को अच्छे से लर्न करें, रीड करें। थैंक यू।